Welcome back to AAA Easy Trading and Investing with Manthapa. Today, we are analyzing a clear leader in India's renewable energy sector, Wari Energies Limited. As the largest manufacturer of solar photovoltaic PV modules in the country, Wari is positioned at the forefront of the global clean energy transition. With a staggering order book, structural margin expansion, and aggressive capacity scaling, this company presents a phenomenal wealth creation opportunity. Let us dive deep into its business model and future prospects. Business segments: solar power products to 86% revenue. This is their core cash engine. It involves the manufacturing of high efficiency PV modules, including multicrystalline, monocrystalline, and TOPCon modules. EPC and services: 12% revenue. Wari acts as an engineering, procurement, and construction EPC contractor, building utility scale solar projects, commercial installations, and retail rooftops. Export markets to 16%. Revenue: a significant and growing chunk of their sales comes from international markets, primarily the US, supplying premium export grade modules that drive higher profit margins. Order book business visibility: Wari Energies boasts a massive order book of close to INR 60,000 crore. This incredible backlog provides clear revenue visibility for the next 2 to 3 years. The company executed at a global scale in Q3 FY26, reaching a production speed of 52 solar modules per minute and becoming the first Indian manufacturer to cross 1 gigawatt of module sales in a single month. They successfully commissioned 5.1 gigawatts of additional capacity, taking their total module manufacturing capacity to a massive 23 gigawatts. Sector growth: the renewable energy sector is experiencing a structural boom driven by global climate targets and strong domestic policy tailwinds. Government incentives like the PLI production linked incentive scheme and ALMM approved list of models and manufacturers regulations are heavily favoring domestic manufacturers like Wari. With global power demand shifting towards green energy, vertically integrated solar players are capturing massive market share. Future prospects: backward integration. The board has approved a massive capital expenditure of INR 2,754 crore to expand solar cell capacity by 4 gigawatts in Gujarat and ingot wafer capacity by 4 gigawatts in Maharashtra. This vertical integration will severely cut raw material cost. Battery energy storage systems: Wari is aggressively expanding into the high margin battery segment, planning a 20 gigawatt hours lithium ion battery capacity. Phase 1 of 3.5 gigawatt hours is expected to commence in FY27, backed by a dedicated fundraise of INR 1003 crore. Global expansion: their factory build-outs include 1.6 gigawatts in Texas, USA, securing their footprint in highly lucrative international markets. Risks and challenges: supply chain volatility. The company remains exposed to global polysilicon price volatility and depends on the smooth integration of overseas supply chains. Regulatory risks: a key concern is the US regulatory risk and potential anti dumping duties, which could impact their lucrative export margins. Execution risk: scaling the massive 20 gigawatt hours battery facility introduces substantial execution risk in a highly technical and competitive new segment. Fundamental analysis: Wari Energies delivered a phenomenal Q3 FY26, reporting a revenue of INR 7,565 crore, marking a 118.8% year-on-year growth. Operating margins have seen a sharp structural expansion due to better fixed cost absorption, scale, and a higher contribution from premium export modules. The stock trades at a reasonable price to earnings ratio of around 21x to 22.4x, which is highly attractive given its triple digit growth profile and a strong return on equity ROE of 25.71%. To summarize, Wari Energies Limited is a dominant market leader rapidly transforming into a fully integrated global green energy powerhouse. With a spectacular INR 60,000 crore order book, massive capacity scaling, and strong domestic policy support, its financial foundation is rock solid. I directly think it is a good stock to buy right now and hold for the next 5 years to compound your wealth safely. Please remember, this is for educational purposes.
Always consult your financial advisor before making any investment decisions. हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। तो आज जो है जैसे कि हम जिस स्टॉक के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, इस कंपनी का नाम है वारे एनर्जीज लिमिटेड। सो वारे एनर्जीज में अभी जो है हमने इसका जो है पूरा जो है हमने फंडामेंटल एनालिसिस करा, इन द सेंस कि हमने समझा कि वारे एनर्जीज जो है वो करती क्या है, किस चीज़ में बिजनेस में है और आने वाला ग्रोथ जो है किस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसके एक बार नंबर्स को जो है वो देख लेते हैं। कंपनी जो है काफ़ी बड़ी है, 86,539 करोड़ की कंपनी है ये। अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 86 है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 83,000 करोड़ का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 है, तो हल्का सा यहाँ पे जो है डेट ले रखा हुआ है, जिसके कारण में एंटरप्राइज वैल्यू थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी बिल्कुल बेहतरीन है, जो कि 22 है, काफ़ी अच्छा पी है। इसका करंट प्राइस जो है 3,009 के आसपास में, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी 5,546 है। तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में ये हमें यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसने जो हाईएस्ट जो अभी जो लगाया था वो था 3,865, और लो जो अभी इसने मारा है वो मारा है 2,402 रुपये का। देखो दोस्तों, कभी भी लो जो है ना, लो पॉइंट तो हम पकड़ ही नहीं सकते, तो इसके लिए तो आपने सोचना नहीं कि लो पॉइंट पकड़ना। अभी 3,009 है तो एक अच्छे नीचे से मोमेंटम बनना चालू हो चुका है। ऑल टाइम हाई से अभी भी 22% हमें जो है डाउन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 22 है, इंडस्ट्री का पी 31.4 है, इंडस्ट्री के पी से काफी कम है। आरओसीई और आरओई बिल्कुल बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, 38.8 एंड 32.8। अर्निंग यील्ड जो है काफी अच्छा है, 6.7 का। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसकी, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसकी 6 की है। इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 4.5 है, तो इंडस्ट्री की बुक वैल्यू से ये डेफिनेटली जो है थोड़ा सा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। सीएफओ बाय पैट जो है काफ़ी बेहतरीन 127% का बना रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसका अगर मैं चार्ट अगर मैं देखूं तो ये जो है कंपनी जो लिस्ट हुई है ये 2024 में लिस्ट हुई है, तो 2026 आज जो है करीबन करीबन 2 साल हो गए हैं। लगभग लगभग हमें उसी लेवल के आसपास में देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 2,890 का जो स्टॉक जो था वो अभी भी जो है करीबन करीबन जो है 3,000 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी फेयर जोन। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम, 2 साल का टाइम भी जो है इसने जो है ऑलमोस्ट स्पेंड कर लिया, 1.5 से 2 साल का। वहीं पर ही अगर जो है इसका हम पी रेशियोज देखेंगे तो लास्ट 3 सालों का अगर हम देखें तो अपने मीडियन से जो है ये डाउन है। लाइकवाइज अगर जो है इसका प्राइस टू बुक भी देखें तो मीडियम से डाउन है, तो ये हमें काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसके प्रोज ये है कि कंपनी ने जो है गुड क्वार्टर ग्रोथ जो है वो अच्छा लग रहा है। कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, 143% CAGR का, जो कि फिनोमिनल है। कंपनी का ROE एंड ROCE जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। कौन से इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में जो इसकी जो कॉम्पिटिटर जो कंपनी है उसमें अगर देखा जाए तो दे आर द बिगर वन, वारे एनर्जीज, जो कि 86,538 करोड़ का कैपिटलेशन है। उसके बाद में अपार इंडस्ट्रीज है जो कि 64,000 करोड़ की कंपनी है। प्रीमियर इंजीनियरिंग 47,000 की है। MTR टेक्नोलॉजी 24,500 करोड़ की है। तो ये जो है अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट है। अर्निंग यील्ड जो है इनकी सबसे बेहतरीन है। इसके बाद में जो है अर्निंग यील्ड काफ़ी अच्छी जो है MV फोटोवोल्ट की भी है। ROC जो है अगर आप देखोगे तो ये सबसे बेहतरीन जो है इन्हीं की ROC है, 39 के आसपास में। वहीं पर ही सेल्स जो है लास्ट 3 सालों में जो है 57% से बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी अग्रेसिव जो है ये ग्रोथ कर रहे हैं। वहीं पर ही अगर देखा जाए तो MV फुटबॉल जो है उसका 101% के आसपास में 3 इयर्स का CAGR ग्रोथ है, जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बट ये जो है दे आर द सेकेंड वन। अच्छा, डायमंड पावर का भी 401% का ग्रोथ हुआ है, बट दे आर डूइंग फेयरली गुड। 57% का CAGR ग्रोथ 3 साल के इस जो है फिनोमिनल। करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू में जो है 6.0 है, सो दे आर वन ऑफ द लेस प्रीमियम, मतलब काफ़ी जो है वैल्यू बाय है करंट मार्केट टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी। रिटर्न ऑन असेट में जो है 13.26 इज फिनोमिनली गुड। प्रीमियर इंजीनियरिंग का जो है इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, 14.38। उसके बाद में सेकंड नंबर में इनका है। रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 31.21 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रीमियर इंजीनियरिंग का जो है वो 45 के आसपास में है, और उसके बाद में जो है इसका जो है 31 के आसपास में है। इससे ऊपर जो है MV फुटबॉल जो है वो 56% जो है वो ROE है। तो ये जो है थर्ड नंबर में वारे एनर्जीज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरा कंपैरिजन करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा लार्ज कैप है। इसमें जो है चेन्नई ने पोजीशंस अपनी इंक्रीज करी हुई है। CFO का पैड जो है वो अबव 100% इज वेरी वेरी गुड। पैग रेशियो 0.22 है, 1 के नीचे है, तो काफ़ी बेहतरीन है। पी रेशियो 22 है, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री जो है। MV फुटबॉल को 21 है, अदरवाइज उसके अलावा जितने भी जो कॉम्पिटिटर हैं उसमें सबसे सेकंड नंबर लोएस्ट में है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें 22% डाउन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे अगर हम इसकी सेल्स अगर हम देखें क्वार्टरली सेल्स, तो आप ये देखो कि ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है। लास्ट अगर मैं 5 क्वार्टर का अगर देखूँ तो 36, 30, 70, 119% और 112%, काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे ये ग्रोथ कर रहे हैं। और लाइकवाइज इनके जो है नेट प्रॉफिट आप देखो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं। वहीं पर ही हम अगर जो है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे, तो आप अगर लास्ट 3 साल का अगर आप देखिए तो 69%, 27% और 84%, काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है इन्होंने सेल्स में करी है। लाइकवाइज इनका जो नेट प्रॉफिट है जो 1274 करोड़ से जो है बढ़ के 1928 करोड़, और अभी जो है 3884 करोड़, काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ जो है इन्होंने 69% करी हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 143% करा हुआ है। CAGR यहाँ पे मेंशन नहीं है, 5 साल अभी हुए नहीं है। एक साल में भी अगर हम देखें तो 84% का ग्रोथ है। प्रॉफिट जो है 111% का है। स्टॉक की जो मूवमेंट जो है वो मात्र 2% से हुई है। तो आने वाले टाइम में ये जो है काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पे ये कैचअप करेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 32, 31 और 33% है, जो कि बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। काफ़ी बेहतरीन ROC और ROE ये बना रहे हैं। रिजर्व ये जो है कंटिन्यूसली इनके बढ़ते जा रहे हैं। इक्विटी कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। कुछ बोरिंग्स वगैरह भी जो है यहाँ पे इंक्रीज करी है इन्होंने। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है 815 की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है 1676 की है। बट ये जो है बोरिंग जो है दैट इज़ वेरी मिनिमल। अगर आप इसके जो है एसेट्स के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दे आर ऑन अ गुड साइड। CWIP में जो है ये काफ़ी पैसा जो है ये लगा रहे हैं। 3476 करोड़ जो है इन्होंने इस फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है इन्होंने इन्वेस्ट करा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इट्स ऑलवेज गुड। CFO बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो तो जो है 47, 143%, 168%, 199%, तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। इस बार जो है ये थोड़ा सा कम यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है, 47% का इस क्वार्टर में, इस लास्ट ईयर में, सॉरी, 47% का है, विच इज़ लिटिल लेस। फ्री कैश फ्लो जो है यहाँ पे, यहाँ तक इनके पास में फ्री कैश फ्लो पड़ा रहता था। अभी जो है फ्री कैश फ्लो जो है इनका जो यहाँ पे जो है नेगेटिव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक छोटा सा नेगेटिव जो है हम इसको डेफिनेटली मान सकते हैं। हम जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें रिवर्सिबल रिसीवेबल तो नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल। इन्वेंट्री तो नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो देखा जाए तो ये जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। डेटर डेज जो है वो 30 से 34 दिन हुए हैं। इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बढ़ा है। डेज पेबल जो है वो कम हुआ है। और कैश कन्वर्शन साइकिल जो है वो भी बढ़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो है बिजनेस जो है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 64.31 थी, अभी जो है 64.19 है। तो ऑलमोस्ट जो है कंस्टेंट ही रही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। FII का जो 1.4 की जो पोजीशन थी वो बढ़ के 7.6 हो गई है। DII जो 2.7 की जो पोजीशन लेके जो बैठे थे वो 4.32 है। तो अगर आप देखोगे तो FII DII दोनों जो है यहाँ पे बुलिश हैं। और यहाँ ये जो है ये कौन बेच रहा है? पब्लिक जो 31% की जो होल्डिंग करके जो चल रही थी, अभी जो है मात्र 24% की होल्डिंग पे है, जो कि 7,67,963 शेयर होल्डर्स जो होते थे वो घट के जो है वो 6,83,301 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो ये भी जो है एक काफ़ी पॉजिटिव नोट है। आपको जो है दोस्तों एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एंड कॉन कॉल को डेफिनेटली गो थ्रू करना है। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी खुद की कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए जो है दैट गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ लेट्स टू वर्ड मूव टुवर्ड द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो दोस्तों जो मैंने जो आपके सामने जो चार्ट खोला है, ये डेली का चार्ट है। अगर मैं इसमें ये देखूं कि जो जब इसका शुरू हुआ है 6 नवंबर 2024 से, इसने एक जो टॉप बनाया, उस टॉप को जो है फिर से इसने जो है 11 सितंबर 2025 को वहां पे टच किया। उसके बाद में फिर डाउन आया और अभी जो है हमें इस लेवल पे देखने को मिल रहा है, जो कि करीबन करीबन 3000 का लेवल है। अब यहाँ पे जो है एक ये जो टॉप है और यहाँ पे टॉप है, इस टॉप को अगर मैं मिला दूँ तो ये अच्छा सा जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। कप ये बन चुका है, इसका जो हैंडल जो है यहाँ से इसने रिवर्सल लिया हुआ है। और ये जो है एक जो है मैंने यहाँ पे जो है एक इसकी ये यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करी है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन। तो इस पैरेलल लाइन के हिसाब से भी जो है ये जो लोअर पॉइंट में था, अभी लोअर पॉइंट में, फिर लोअर पॉइंट में आया था, अभी जो है ये लोअर पॉइंट से तो थोड़ा ऊपर है। बट अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे पोजीशन में है कि यहाँ से जो है ये ऑल टाइम हाई के लिए जो है पहला टारगेट जो है ये ऑल टाइम हाई तक टच करे, विच इज़ समवेयर अराउंड 25%। और इसके बाद में जो है जब ये ऑल टाइम हाई करेगा टच, इसके बाद में जो है इसका जो ये जो रेशियो है इसका इसका जो टारगेट जो है 5584 का। तो ये जो टारगेट है दोस्तों मेरे हिसाब से आने वाले 1 से 2 सालों में ही आपको मिल जाना चाहिए। कभी कभार हो सकता है कि 3 से 5 साल भी लग जाएं, लेकिन ये है कि ये जो स्टॉक जो है ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। और जो है यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो है मेरे हिसाब से जो है यू कैन टेक दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म।
काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और इसमें सेम जो है मैंने ये वीडियो जो है लास्ट टाइम जो है ये कब बनाई है मैं आपको दिखाता हूँ। 7 मंथ्स एगो 9 नवंबर को जो है मैंने इसमें वीडियो बनाई थी इसमें। तो ये जो है इसका जो करंट प्राइस जो उस टाइम में चल रहा था वो 3,276 का था। अभी जो है आपको उस लेवल से भी कम में यहाँ पे बाय करने का मौका मिल रहा है, करीबन करीबन 3,009 के लेवल में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टाइम है इसको एक्युमुलेट करने का। और ऐसे स्टॉक को जब ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको टाइम देती है, 1 साल 2 साल एक्युमुलेट करने का, और उसके बाद में ये सीधा जब बूस्ट करती है, तो ये जो है आपके प्रॉफिट को, आपके जो पोर्टफोलियो को जो है एक ओवर वेटेज यहाँ पे बना देती है और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देती है। दोस्तों इसमें विश्वास रखने की बात है। इसमें जो है काफ़ी टेलविंड चल रहा है, लोगों जो हैं सोलर इंडस्ट्री में बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं दे आर वेरी बुलिश ऑन दैट। और अभी जो है इसको जो है आने वाले टाइम में जो है ये डेफिनेटली साथ में ग्रो करेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो है इसी तरह से जो है साथ में लर्निंग करनी है, साथ में स्टॉक की एनालिसिस करनी है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, कैसे हमें कंपैरिजन करना है विद पीयर्स, खुद के साथ में कैसे कंपैरिजन करना है। तो ये हम पूरा डीप एनालिसिस लेकर आए थे आपके लिए वारे एनर्जी लिमिटेड के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड। और डेफिनेटली जो है इसमें जो है आप अपना कन्विक्शन बना के जो है लॉन्ग टर्म बेट डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नए स्टॉक के साथ में, उसकी एनालिसिस, डीप एनालिसिस के साथ में फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।